So, hey guys, this is Aditya Raj Gupta, and in this video we will gonna start with spanning. So, in this video I'm gonna discuss about spanning in rows and columns using grid system. As we have discussed the basics of grid system and how to create gaps in between the grids by not using the margin. So that's how I have taught you the grid and flexbox and all in the previous videos. And now I think you are doing good in web development course. If you have any doubt, query related questions, then comment below, or for your reference I have created a Telegram channel, so you will find the link in the description box. You can go there, click on the link and then join on the Telegram channel, and there you will find the references for future updates related to web development field, and you can ask any queries. If you are new to my channel, then please subscribe my channel and hit the like button if you like my video, and share this video to your friends who really want to become a front-end developer, or if you can say that full stack developer. And now let us start that. I have created awesome videos and I have created front-end development skills video which are really important for a front-end developer. If you want to become a front-end developer, professional front-end developer, then you can see this video for your reference. And I have created a complete gym website which is this, so you can watch this. And I have created an HTML playlist and CSS playlist as well, so you can watch these. You will find the link of all these things in the description box, so go there, have access to that and save the playlist for your reference. So let us start this video using the markup playground section, and I have created the project naming spanning multiple rows and columns in grid. So let me type a title in the comments that I will gonna discuss about spanning in rows and columns. Columns is called short form in grid system. So you will be listening some dripping sound as it is raining out. So I'm really sorry, but what can I do? It's a natural thing. It's raining outside. तो हर बार की तरह एज यूजुअल मैं कुछ डिब्बे क्रिएट कर लेता हूँ जिनकी क्लास में एज यूजुअल कंटेनर दूंगा, तो क्लास उनकी हमेशा कंटेनर ही रहेगी. तो क्लास की रहेगी कंटेनर, और मैं फिर इसको क्लोज भी करूँगा. तो क्लोज करने के लिए भी वही div/close, एंड फिर मैं वहाँ पे कुछ आइटम्स बना दूंगा जो कि मैं div में ही प्रोवाइड करना चाहूँगा, और उनकी क्लास में आइटम भी दे सकता हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ, बॉक्स भी दे सकता हूँ. तो यहाँ पे हम बॉक्स दे देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं box1 और item1 एनीथिंग, तो box1. और इनको भी मैं क्लोज करना चाहूँगा, div से मैं क्लोज कर दूँगा. और फिर मैं यहाँ पे कुछ 10 के आसपास या 8 के, आप कितने भी बना सकते हैं डब्बे, यहाँ पे वहाँ पे डब्बे में क्रिएट कर लेता हूँ. तो यहाँ पे 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9. तो 9 डिब्बे यानी 9 बॉक्सेस हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं. और अब हमने इसको ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करेंगे मार्कअप पे, सीधा हम इसको स्टाइलिंग करेंगे और फिर अपने ग्रिड वाला जो मेन टॉपिक है वो देखेंगे. तो स्टाइलिंग में पहले कंटेनर को ही यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड करना पड़ेगा मुझे. डिस्प्ले ग्रिड एमिट में सब आ जाता है. बिल्कुल एमिट वाला ऑप्शन हमारे लिए इतना बढ़िया है, ये आपके लिए कोडिंग बिल्कुल आसान कर देता है. ऑनलाइन कंपाइलर में यही एक चीज़ आसान होती है कि मतलब प्रोजेक्ट आपको बार बार सेव नहीं करना पड़ता, अपने आप ही सेव हो जाता है. और जो मैं इसको एक और क्लास दी है, मतलब मैं अपने डब्बों को जो क्लास दी है यानी बॉक्स, तो उसको भी मैं स्टाइलिंग करूँगा. और उनको मैं पहले बॉर्डर प्रोवाइड कर देता हूँ. बॉर्डर में दे देता हूँ 2 पिक्सल्स सॉलिड येलो बॉर्डर दे देता हूँ मैं. और इसके येलो के हिसाब से मुझे बैकग्राउंड भी देना पड़ेगा, तो मैं उसका बैकग्राउंड कर देता हूँ. हमारा ये जो पर्पल कलर होता है ना, पर्पल, वो येलो बैकग्राउंड पे बिल्कुल अच्छा लगता है. तो बैकग्राउंड पर्पल, बैकग्राउंड पर्पल. तो इसका जो बैकग्राउंड दिया है वो मैंने पर्पल दिया है, और येलो भी बिल्कुल अच्छा लग रहा है. अभी ये सारे जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको मतलब अभी उतना फील नहीं आ रहा है कलर कॉम्बिनेशंस का. फिर मैंने आपको इससे पिछली वीडियोस में ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ग्रिड टेम्पलेट रोज, इन सब के बारे में बताया. अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी है, और अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी ना, तो उनको आप जाके एक्सेस कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी. और अगर उनमें भी किसी भी चीज़ में डाउट है आपको, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप पूछ सकते हैं. तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि अपना ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ग्रिड जहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड करा है उसके नीचे ही ये लाइन कर दूंगा, और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स. तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स में हम दे देंगे इसको 1FR, 3FR एंड 3FR. सो FR तो यूनिट है, आप एज यूजुअल आपको पता है बिल्कुल. तो मतलब ये हमारे 3 के हिसाब से अलाइन हो चुकी है. और इन्होंने जो विड्थ लिया है ना, वो 1FR लिया है. फिर सेकंड वाले ने उसका 3 बार लिया है, 3 इंटू मतलब 3 गुना लिया है. फिर इस वाले ने मतलब थर्ड वाले ने भी उसका 3 गुना लिया है, क्योंकि हमने 1 3 3 दिया है, ऐसे दिया है ना, तो वो ऐसा ले रहे हैं. यार ये सब चीज़ें मैं आपको अच्छे से ऑलरेडी समझा चुका हूँ.
फिर हम यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट रो वाइज भी कर देते हैं, और उसको तो मैं रिपीट वाला कर देता हूँ, नहीं तो हम ये FR वाला भी कर सकते हैं। अब वो तो आपकी मर्जी है, मैंने आपको सब बता रखा है, आप एक्सप्लोर करिए चीज़ों को कर करके, क्योंकि मैंने जो अपने टाइम पे था वो एक्सप्लोरिंग चीज़ें कर चुकी है। तो ग्रिड टेम्पलेट रोज उसको मैं अब रिपीट कर देता हूँ, नहीं तो आप FR भी यूज़ कर सकते हैं। और ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं यार, आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो रिपीट 1 और रिपीट 4, और यहाँ पे दे देता हूँ मैं 1 FR। तो 1 4 के बाद ये रिपीट होता रहेगा हर 4 के बाद। तो अच्छा, ज़्यादा नहीं है यहाँ पे मेरे पास कंटेंट, तो यहाँ पे मेरे को कंटेंट तो ज़्यादा देना पड़ेगा, पर हाँ कंटेंट पहले हम ज़्यादा दे देते हैं यहाँ पे। तो कंटेंट में इसको ज़्यादा दे देता हूँ, तो अब यहाँ पे ये बिल्कुल ज़्यादा कंटेंट आ चुका है और ये बिल्कुल अलाइन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इसको ग्रिड गैप करके वो आता है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो के लास्ट में बताया था कि मैं आपको अगली वीडियो में ये बताऊंगा कि हम टेम्पलेट में बिना मार्जिन यूज़ करें, ग्रिड सिस्टम में बिना मार्जिन यूज़ करें हम कॉलम वाइज और रो वाइज अलग अलग मार्जिन कैसे दे सकते हैं। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पे मार्जिन ना यूज़ करें। क्यों? क्योंकि हम जब अपने वेबसाइट को रैंक कराते हैं ना SEO पे, तो वो मतलब अच्छी कोडिंग मांगता है। जो वेबसाइट फास्ट होती है, वो जो वेबसाइट बिल्कुल अच्छी तरीके से चल सके, तभी तो मतलब एक वेबसाइट का हम एक्सपीरियंस अगर जानना चाहें ना, तो वो यूज़र ही दे सकते हैं। तो मतलब मान लो एक हमने वेबसाइट पोस्ट करी और उसका क्या हो रहा है कि स्पीड भी कम है, उसकी रिक्वेस्ट जब हम करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, उसको लॉगिन करते हैं, इधर उधर जाते हैं उस वेबसाइट में, तो वो भी कम है, और उसमें क्या हो रहा है कि मतलब चीज़ें देर बाद लोड होती है। तो ये सारी क्या होती है, बैड वेबसाइट होती है, और ये सारी वेबसाइट्स रैंक करती नहीं। और मान लो कि रिस्पॉन्सिव ही नहीं है वेबसाइट रिस्पॉन्सिव ही नहीं है, मतलब उसमें क्या होता है कि जब हम उसको फ़ोन में देखते हैं या टैबलेट मोड में देखते हैं या फिर आईफोन किसी चीज़ में देखते हैं, तो वेबसाइट काम ही नहीं कर रही। तो क्या करेगा गूगल? उसको शो करेगा क्या? नहीं करेगा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि गूगल ऐसी ही वेबसाइट्स को शो करता है जो फुल्ली रिस्पॉन्सिव होती है और कंप्लीट होती है, जिनका SSH HTTP ये सब अच्छा होता है, उन वेबसाइट्स को गूगल रैंक कराने में बहुत अच्छी तरीके से मदद कर रहा है। तो अगर आपको एक प्रोफेशनल डेवलपर बनना है ना, वेब डेवलपर, तो आपको ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी वीडियोज़ में अगर आप बने रहेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहेगी। बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। तो हम क्या कर रहे थे, ग्रिड टेम्पलेट रोज हो गया, हम ग्रिड गैप के बारे में कर रहे थे। तो ग्रिड गैप हमारे पास रो वाइज देना चाहते हैं हम, तो इसको मैं कर देता हूँ 1 rem प्रोवाइड। और यहाँ पे मैं जो ग्रिड गैप है, ग्रिड गैप और कॉलम वाइज दे सकता हूँ मैं। तो यही है, इतना सिंपल है यार, आपने एक्सप्लोर करा होगा उस दिन। अगर आपको मतलब मेरे साथ कर रहे हैं आप काम, तो अगर मैं इसको 6 rem दे दूँ, 6 rem ही देते हैं हम अगर क्या, तो मतलब जो हमने ये जो कॉलम वाइज जो गैप दिया उसका मार्जिन दिया है वो ज़्यादा दिया है, और ये वाइज हमने 1 ही दिया है, मतलब रो वाइज हमने कम ही दिया है। तो अगर मैं उसको और बढ़ा दूंगा ना, तो ये और बढ़ जाएगा और ऑसम लगेगा। अगर हमारा कंटेंट बड़ा हो तो, कंटेंट मतलब जब हमारे डब्बे की साइज भी बड़ी हो ना, तब ये ऑसम लगेगा। अभी तो फिलहाल ऐसे ही सही लग रहा था ये 1 मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, ताकि आपको एक्सप्लोर कर सके आप चीज़ें। और अगर मैं पूरा एक तरीके से समान ग्रिड देना चाहता हूँ, मतलब गैप, तो हम वो भी दे सकते हैं। तो सिंपल उसके लिए हम क्या करते हैं, ग्रिड गैप करते हैं हम उसके लिए सीधा। अगर मैं 2 rem का गैप दे दूँ या 1 rem का दे दूँ, एनीथिंग यू वांट टू गिव यू कैन गिव। तो 1 rem का गैप दिया, तो ये बिल्कुल एज यूजुअल ऑसम लग रहा है। जो यहाँ पे हमारी मेन चीज़ है वो हम देखेंगे, उससे पहले मैं जो पैडिंग है ना, यहाँ पे पैडिंग भी दिखा देता हूँ आपको। तो पैडिंग हम यहाँ पे दे देते हैं 24 पिक्सल्स की पैडिंग। तो ये पैडिंग भी अलाइन हो जाएगी और ये बिल्कुल ऑसम लग रहा है। हमारे जो ये पर्पल कलर है ना, वो थोड़ा डार्क है, तो कलर कॉम्बिनेशंस में तो आपको पता ही है गड़बड़ हो ही जाती है। तो वो कुछ मेजर इशू नहीं है यहाँ पे, उसको हम लाइट कर देते हैं। और अब हमारे बॉक्स 1 बॉक्स 2 आराम से बिल्कुल दिख रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारा मेन चीज़ था क्या था, स्पैनिंग था। स्पैनिंग कैसे करेंगे हम, तो जैसे कि मैंने आपको nth चाइल्ड सूडो सिलेक्टर्स के बारे में पढ़ाया था, तो वो यहाँ पे यूज़ होगा। तो बॉक्स में जाएंगे हम और वहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट चाइल्ड। बॉक्स में जाके हमारे पास जो फर्स्ट चाइल्ड है ना, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट चाइल्ड को सिलेक्ट करा, अब यहाँ पे हम स्पैनिंग देंगे। अब ध्यान से देखना कि ये वाले पार्ट, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना कि इस चीज़ को हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं स्पैनिंग देना चाहता हूँ 2 रोज़ को, तो यहाँ पे करूँगा मैं ग्रिड कॉलम स्टार्ट। ग्रिड कॉलम कहाँ गया, ये एमेट में तो शो कर रहा है। ग्रिड कॉलम स्टार्ट अगर मैंने 1 से कर दी, और फिर ग्रिड कॉलम एंड मैं यहाँ पे इसको 3 पे एंड कर देता हूँ। तो अब क्या करेगा, ये 2 रो को बिल्कुल एंड कर लेगा। पर अब आप सोच रहे होंगे यार कि मैंने इसको एंड तो 3 पे करा है, पर ये ले कितना रहा है,
पर ये मतलब 2 ही बॉक्सेस ले रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है हमारे लिए। ये वाली लाइन, ये फर्स्ट वाली लाइन को 1 काउंट कर रहा है, फिर ये जो दूसरी वाली लाइन है ना उसको 2 काउंट कर रहा है, फिर ये थर्ड वाली लाइन को 3 काउंट कर रहा है। तो हमने 1 से शुरू करा, फिर हम सेकंड पे आए, फिर थर्ड पे आए, तो 1 से 3 तक के वो 2 बॉक्सेस कवर कर रहा है। अगर यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा बॉक्सेस होते ना तो वो ज़्यादा बॉक्सेस नहीं कवर करता, क्या करता वो हमारे 3 ही लाइन को लेता। अगर हम ज़्यादा देते वहाँ पे 4 दे देते तब ये हमारा एक्स्ट्रा ले लेगा। देखते हैं वहाँ पे भी करके अभी, तो 4 दे दिया ना मैंने इसको, तब ये आगे वाला भी हमारा बॉक्स कवर कर लेगा। तो कितना औसम लग रहा है ये। और हमारे जो ये बॉक्स 2 बॉक्स 3 मतलब वो आगे शिफ्ट हो जा रही है, ऐसा नहीं है कि वो गायब हो जा रही है या फिर उनकी अलाइनमेंट खराब हो जा रही है। तो ग्रिड सिस्टम की यार यही खासियत होती है कि हम जब उनको बॉक्सेस को स्पैन करते हैं या फिर कुछ भी मार्जिन पैडिंग उसमें इंटरनली देते हैं ग्रिड गैप्स यूज़ करके, तो वो बिल्कुल हमारी चीज़ों को ना अलाइनमेंट ख़राब नहीं करता। जो तभी तो ये सारी चीज़ें ग्रिड सिस्टम की अगर हमारी वेबसाइट बनी हो तो वो रैंक अच्छी तरीके से करती है, या फिर हमने फ्लैश बॉक्स यूज़ करके वेबसाइट बनाई है तो वो रैंक बिल्कुल अच्छी तरीके से करती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मतलब इतना भी ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ ग्रिड सिस्टम से ही बनाएं, क्योंकि अगर आप फ्लेक्स बॉक्स अच्छी तरीके से जानते हैं और फ्लेक्स बॉक्स की तरीके से अगर आप फ्लेक्स बॉक्स अच्छी तरीके से जानते हैं और फ्लेक्स बॉक्स से अगर आप कोई वेबसाइट अच्छी तरीके से बना सकते हैं जो कि अच्छी तरह से रैंक कर सके, तो आप जरूरी नहीं है कि ग्रिड सिस्टम यूज़ करें, आप फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करते हैं। अगर आपको फ्लोट यूज़ करना अच्छे से आता है, फ्लोट्स के अलाइनमेंट पता है कैसे करते हैं, अगर इसको ठीक करने से हमें ये नई चीज़ बिगड़ती है फ्लोट करने से, फ्लोट राइट लेफ्ट करने तो और आपकी वेबसाइट वहाँ पर अच्छी तरीके से रैंक करती है, वो भी कर सकते हैं। और यही सारी सेम चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, हम रो के साथ भी खेल सकते हैं। तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ और हम इसी को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये ग्रिड कॉलम की जगह मेरे को यहाँ पे सिंपली रो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रो कर दिया मैंने और इस वाले को भी मेरे को रो करना पड़ेगा, और इसको हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और 3 पे एंड कर रहे हैं, और इसको भी मैं अभी फिलहाल के लिए 3 कर देता हूँ। तो क्या होगा, हमारे ये जो कॉलम में सेम चीज़ हुई है ना हमारी, वो रो में हो जाएगी। तो आपने देखा कि ये मतलब इस वाले का 1 ले रहा है, फिर इस वाले का लाइन का 2 काउंट कर रहा है, फिर इसको 3 काउंट कर रहा है, फिर ये स्पैन कर दे रहा है। तो हम इनका बिल्कुल इतनी ईजिली काम कर सकते हैं। और अगर स्पैनिंग में भी अभी शॉर्ट हैंड चाहिए, वैसे तो ये शॉर्ट, ये क्या इसमें शॉर्ट हैंड लोगे, बट स्टिल आई हैव शॉर्ट हैंड, और कह सकते हैं कि मतलब इसमें शॉर्ट हैंड बनाया गया है ये। तो यहाँ पे अगर हम ग्रिड कॉलम लिखे, सीधा ग्रिड कॉलम, और वहाँ पे मैं स्पैनिंग के लिए 1 और फिर यहाँ पे मैं लगाऊँ स्लैश, फिर यहाँ पे लिखूँ स्पैन और 3, तब ये बिल्कुल काम करना चाहिए मेरा। हाँ, काम करेगा ये बिल्कुल। तो यहाँ पे उससे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे जो ऊपर वाला है उसको कमेंट आउट करना पड़ेगा, जब तो काम करेगी सारी साइज। वैसे तो ओवरराइट हो जाता है, बट ग्रिड वाले में मैंने ट्राई नहीं करा। हाँ बिल्कुल, तो अभी ये काम कर रहा है। तो अब ये कैसे काम कर रहा है, अब ये ऐसा हो रहा है कि इस वाले में क्या होता है कि ये 3 डब्बों को काउंट करेगा, ऐसा नहीं है कि 3 लाइन को काउंट करेगा। उस वाले में क्या हो रहा था, 3 लाइन को काउंट कर रहा था। इस वाले में क्या होगा, ये 3 डब्बों को काउंट करेगा। अगर यहाँ पे पास डब्बे 4 है ना, तो वो 3 डब्बों को ही काउंट करेगा, चौथे वाले को नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि 4 डब्बे तो चारों को काउंट कर लेगा, नहीं, अगर हमने 3 दिया तो 3 को ही काउंट करेगा। तो अगर मैं क्या करूँ आपको वो बताने के लिए, जैसे कि 4 डब्बे बनाने ना, तो मैंने यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स में 3 दे रखा है, 3FR। तो इनको मैं कर देता हूँ 2FR, इनको कर देता हूँ 2FR, और यहाँ पे मैं एक और वो ले आता हूँ कॉलम जो कि 2FR का होगा। और यहाँ पे अगर मैं कंटेंट को और बढ़ा दूँ 2-4 बार, और फिर अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो ये ऐसा हो गया है। और अब देखो आप कि मतलब मैंने यहाँ पे स्पैनिंग क्या दी थी, ये जो शॉर्ट हैंड वाला मैं बता रहा था आपको, ये शॉर्ट हैंड नहीं यार, एक और टाइप का स्पैनिंग कह सकते हैं हम इसे। तो ये स्पैन 3 डब्बों को स्पैन कर रहा है। अगर 3 डब्बों को स्पैन कैसे कर रहा है, ये हमारा बॉक्स 3 भी ले रहा है, 4 भी ले रहा है, 5 भी ले रहा है, और ये कॉलम में दिया है। अगर मैं इसी चीज़ को सेम रो में भी देना चाहूँ ना, तो ये रो में भी वही काम करेगा, रो। तो ये रो में भी हमारे 3 डब्बों को लेगा, 1, 2 और 3। अगर मैं उसी चीज़ को वहाँ पे 4 कर दूँ, 4, ये सब चीज़ें मैं आपके लिए बता रहा हूँ यार, ताकि आप खुद भी एक्सप्लोर कर सके चीज़ों को। तो ये पूरा ऐसे ले रहा है। तो आपने देखा कितना औसम है ये। इसको हम एज यूजुअल 3 रखते हैं ताकि अलाइनमेंट थोड़ी सही लगे हमें। और ये सारी चीज़ें ना, ग्रिड सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जितनी भी सारी वीडियोस मेरी ग्रिड सिस्टम के लिए आने वाली है, उन वीडियोस को बिल्कुल ध्यान से देखना है यार आप। तो आज के लिए स्पैनिंग कॉलम एंड रो के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप कि आप मेरे साथ कोडिंग कर रहे होंगे। तब तक के लिए कोड करते रहो, पढ़ते रहो। बाय बाय।